Hello and welcome to BW Business World CX Coffee Dialogue supported by Unifor, where we look and understand as to what makes up for a good customer experience across industries and sectors in conversation with industry leaders. For this edition, I'm joined by Mr. Ankit Gupta, who's the Chief Executive Officer of Physics Wala Offline. Ankit is a young marketing professional who is passionate about the edtech revolution, the education sector in India, and in his current role, he spearheads the organization's forward integration efforts in the offline space. Ankit will be talking to me about the future of customer centric edtech and what would really entail for a seamless education journey. Of course, moderating this discussion with me is Ms. Harshini Sridhar, Business Head India at Unifor. Thank you so much, both of you, for joining. And Ankit, my first question to you precisely, given the boom that we saw for the edtech sector in the last 3-4 years, based on your experience, based on your observations, how do you see the interference for edtech platforms being more enhanced, both for this from the point of view of students and teachers? Great. See, enhancing the user experience for both students and teachers, I think is the most important vision and mission for the edtech industry, right? क्योंकि अगर हम देखें तो ये edtech is 80% of what हमारे पास जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, एक्सेट्रा. So 80% तो it is all about the video streaming. In the OTT platforms, what we get extra is कि captions का एक visibility होती है. If we want to change the English, Hindi, Kannada, etc., we can change as well. But for the edtech, it is further improving the experience because it is not just a video streaming. We also need to give further tools for the students and for the teachers. For example, live chat, right? For example, doubt solving portals. For example, a portal where the student can also make notes, a panel where a teacher can conduct polls as well, a panel and a facility where the quality of the video can be controlled, etc. etc. In Physics Wala, we consider user experience for students and teachers as a very important thing, and the way we are able to solve it is by few of the pointers which I am ready to share. First is the user friendly interface. आज के समय कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म है, कोई भी है, the number of users which are attending one particular class can be in lakhs as well. इन फिजिक्स वाला हमारे पास ऐसे बैचेस और क्लासरूम्स हैं जहाँ पर एक साथ 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं. 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, राइट? सबका लेवल ऑफ ये अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट है. यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है सो डैट किसी भी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस इन दी ऐप बहुत ही स्मूथ रहे, बहुत ही सिंपल रहे, राइट? उसको कभी ऐसी प्रॉब्लम ना फेस हो कि यार ये ऐप यूज़ करना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर क्या पढ़ने आया है. पढ़ने के लिए उसके पास जो ऐप है, इंटरफेस है, यूआई है, बहुत ही सिंपल होना चाहिए. एंड द सेम गोज फॉर द टीचर्स कम्युनिटी एज वेल. सो यस, अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. सेकेंड and the next is what I believe is diverse functionality. In Physics Wala, as we speak, we are into 28 plus categories. अब एक एक कैटेगरी में स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट और टेस्ट प्रेप का रिक्वायरमेंट बहुत ही डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट नीट का एस्पिरेंट है, नीट यूजी का एस्पिरेंट है, तो इट इज़ 100% ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, राइट? एंड इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड एक्सेट्रा, राइट? तो उस स्टूडेंट का यूज़र एक्सपीरियंस ऐप पर एकदम ही अलग होगा. एंड फॉर एग्जांपल, अब कोई और मेच्योर कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, राइट? सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स आर बोथ प्री एंड मेंस. प्री 100% ऑब्जेक्टिव है, मेंस इज अ सब्जेक्टिव वेयर आपको ये ऐसे है ना
तो उसके लिए फिजिक्स वाला में अगर कोई सिविल सर्विसेज यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो एक पूरा पोर्टल है जहाँ पर वो मेंस के आंसर लिख कर फोटो खींचकर पोर्टल पे डालेगा। उसी समय बैकएंड पर उसके प्राइमरी टीचर या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास पहुंचेगा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पेन टाइप से सॉल्व करने के बाद बता देगा कि आपके पास ये इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, राइट, एंड देन द स्टूडेंट्स और द एस्पिरेंट गेट्स टू नो, राइट। सो डाइवर्स ऑफरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी कैटेगरी एंड टेस्ट प्रेप का रिक्वायरमेंट बहुत ही अलग है। नेक्स्ट इज व्हाट आई बिलीव कि वन स्टॉप सॉल्यूशन देना फॉर ऑल एजुकेशन नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उसके साथ साथ स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में कि मल्टीपल टूल्स होते हैं, राइट, उसको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, उसको डाउट सॉल्विंग का पोर्टल भी चाहिए, उसको मेंटरशिप का पोर्टल भी चाहिए, राइट। सो एक कोई भी एडटेक है, आई थिंक वो वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तभी आपका यूज़र इंगेजमेंट या स्टूडेंट इंगेजमेंट बहुत इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इज टू प्ले विथ ऑल द डेटा एंड बेहतरीन तरीके से इंसाइट्स बनाकर अपने टीचर्स को देना, सो दैट टीचर्स ऑल्सो नो कि क्लासरूम में चल क्या रहा है, राइट। टीचर्स को पता हो कि बच्चे का पल्स क्या है, बच्चे ने टेस्ट जो दिया उसमें उसका पेन पॉइंट क्या आया, राइट, बच्चे का अटेंडेंस क्या है, बच्चे का इंगेजमेंट क्या है, बच्चे ने डाउट पूछा तो किसी ने डाउट सॉल्व किया कि नहीं किया। तो आई थिंक वो डेटा एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड्स एंड टूल्स के बेसिस पे टीचर्स को केपेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द ऐप and by the interface as well. And lastly, what I believe is every edtech and every player in the industry, data privacy and security is most important, right? And in physics wala, what we believe is every student teacher data is secure and we are compliant with all the norms. So these are Arjun, few of the ways where we can definitely improve a student and a teacher experience Right. in the edtech industry. Right. So clearly, a lot of insights on what your vision is for how it can be enhanced, and especially the thrust on data privacy and the protection of that, given the discussions around it, it's really vital. Harshni, you would like to ask something? Yeah, I think so. I come from the CX space. I always say I have four great passions in life. Like I was just telling you, filter coffee, Manchester United, cricket, and customer experience, right? And for me, I have a 12-year-old kid, and I am as much a customer as he is to any edtech platform. You're not just catering to the student, but also their parents. And in my case, my parents also, because they are more invested into my kids' education than I really am. So I know NPS is a holy grail metric that everybody tracks, and everybody wants to get in to the CX space, into customer experience. So I want to hear from you, Ankit, how do you approach CX in this slightly more complicated ecosystem of edtech, where it's not just one person serving one customer, the customer is manifold. So can you maybe talk through a little bit about that? Wonderful question, and I think this question is very important for us, especially. See, कोई भी industry है, fintech, edtech, I think it is all built on the DNA of improving the customer experience, right? Customer feedback gives us number of insights कि हम अपना कैसे academics को improve करें, कैसे अपने product को और भी ये innovative बनाएं, right? And what I can proudly say, from the day I have joined Physics Wala, the most talking point in our office is all about the customer feedback. And firstly, we don't say it is customer, we say it is the students, right? हम कभी भी अपने ऑफिस में कस्टमर वर्ड नहीं करते, हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। फिजिक्स वाला take it seriously, and I think everyone takes it as well. It is the most important piece where any edtech can be built. From my personal experience and the way we look at it is, first is the academic feedback, second is the technical feedback because it is the edtech, right? तो उसमें वो technology feedback लेना बहुत important है, and third is the operational feedback. ऑपरेशनल फीडबैक भी इसीलिए क्योंकि इट इज़ फिजिक्स वाला इज इनटू बोथ ऑनलाइन एज द ऑफलाइन वर्ल्ड। ऑफलाइन थोड़ा ऑपरेशनली इंटेंसिव वर्क होता है फर्स्ट, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एकेडमिक फीडबैक।
So in all the businesses we are into, we conduct a frequent or a time based ये NPS survey where every student of the offline category as well as the online category is asked a number of questions about the academics, about the teacher, about the content, about the experience, about the video, about the tech as well. And then we get many insights from it to further improve upon. अगर मैं ये ऑनलाइन की बात करूं, तो जब कोई भी लाइव लेक्चर ख़त्म होता है, कोई भी स्ट्रीमिंग ख़त्म होती है, कोई भी टेस्ट कंडक्ट होता है, तो स्टूडेंट के पास एक ऐप पर ही इंफॉर्मेशन पहुंचता है where they need to give the score to that particular lecture, right? The 1 से 5 के स्केल पर आपके पास क्या स्कोर आया, right? And then it is followed by a number of questions as well. कि अगर किसी ने 3-4 दिया तो पूछ लेते हैं कि क्या नहीं पसंद आया, कि कंटेंट नहीं पसंद आया, वीडियो में टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, एसेट्रा एसेट्रा, राइट? तो वहाँ से काफ़ी अच्छे ये हमारे पास ये इंसाइट्स आते हैं, राइट? एंड द वॉल्यूम एट विच वी डील, कि वी हैव लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन वर्ल्ड एज वेल एज द ऑफलाइन वर्ल्ड. तो डेटा हमारे पास जो आता है उससे हम अकेडमिकली देख लेते हैं कि यार कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, and we try to improve upon. We also pass the feedback to the teachers as well, to the back-end team as well, right? कि academically these are the pain points. Plus, I think feedback can also be dealt from the analytics point of view as well. इतने सारे बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, आपको पता है उनके टेस्ट का स्कोर क्या आया, फिर आपको टेस्ट में ये भी पता है कि पेन पॉइंट क्या आया उनका, राइट? तो वो पेन पॉइंट पकड़ कर ये एनालिटिक्स से हम अपने टीचर्स को बताते हैं कि यार ये टॉपिक बच्चे का वीक है, इसको इम्प्रूव करो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव वे टू पास ऑन द फीडबैक. सेकेंड इज द टेक्निकल फीडबैक. टेक्निकल फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हमारे ऐप पे मिलियंस ऑफ ये स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, सभी बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, राइट? सबके पास द टाइप ऑफ फोन्स भी डिफरेंट होता है, राइट? किसी के पास पुराना फ़ोन है, किसी के पास नया फ़ोन है, किसी के पास टैबलेट है, किसी के पास लैपटॉप है, एक्सेट्रा, राइट? तो सबके पास इंटरनेट ये एक्सेसिबिलिटी भी डिफरेंट है, राइट? कोई टियर 4 सिटीज़ में है, कोई बहुत दूर से बैठ के पढ़ रहा है, कोई मेट्रो में है, एक्सेट्रा, राइट? तो टेक एंड प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन बनाना कि वो एक साथ सभी बच्चों के पास पहुँचे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और बिकॉज ऑफ द बेस वी हैव, वी नाउ नो कि स्टूडेंट का नीड क्या है, स्टूडेंट के पास किस टाइप का फ़ोन है, स्टूडेंट के पास किस टाइप का इंटरनेट है. उसके वे में आप अपना यूज़र इंटरफेस ऐसा बनाओ, अपना वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी ऐसा बनाओ किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आए. और उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है कोई भी वीडियो में, तो एप्लीकेशन पर सपोर्ट का बॉक्स है, वहाँ जाइए, वो बता देता है आपको द स्टेप्स टू फर्दर इम्प्रूव इट, कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. उसके बाद भी नहीं सॉल्व होता है तो देयर इज़ ऑलवेज अ 24/7 ये स्टूडेंट लाइन. बच्चा फ़ोन करेगा, बता देगा, हमारी बैकएंड टीम उसको सॉल्व भी करती है. एंड द नेक्स्ट इज़ द ऑपरेशनल फीडबैक, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में भी बहुत अच्छे स्केल पे वर्क करते हैं. ऑफलाइन में एक स्टूडेंट चेक इन करता है, प्रेमाइज में चेकआउट करता है, तो इंफ्रा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, राइट? तो वो सब चीज़ें भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस बच्चे के पास पहुंचता है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द पैरामीटर्स एंड वी टेक इट वेरी सीरियसली एंड आवर फाउंडर्स आर ऑब्सेस्ड विथ इट. एंड बिकॉज उन्होंने अभी तक आई थिंक उसी के बेस पर कंपनी बनाई है. बच्चों की बातें सुन सुन के ही हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट और अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव किया. I think one point which is you mentioned, which I've been in the CX space for 10 years now, which is very important, is how you're democratizing feedback data. It is not sitting with a central team. You're passing it on to your teacher, you're passing it on to your technical team, to your operational team. It's not just with one central CX team. So I think that is great. So Right, that's and your clearly, Ankit, a very robust feedback mechanism. But let me pick up some things from your first answer and your second answer. You talked about how sort of there's a mentorship for students, online feedback from teachers, and then in your second answer, I could sense a very heavy focus. Of course, you have offline as a clear thing.
I want to understand that when it comes to personalized support to students, of course, you mentioned briefly about that in your first answer, but how do you see that happening in offline as well? Because ऑफलाइन में हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को वो सपोर्ट लेने में इतनी भीड़ में एक हिचक होती है, तो वो सपोर्ट थोड़ा आप ऑनलाइन के बारे में बताइए, एंड देन ऑफलाइन में तो रियली आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट्स हैपनिंग. No, wonderful question, I think, Arjun. See, मैं अगर पेरेंट हूँ, राइट, मतलब आई थिंक सिर्फ एक एजुकेशन वीडियो देखना ही मैं नहीं बोलूँगा बच्चे को देख लो, राइट. उसके साथ साथ उसको मेंटरशिप क्या मिल रही है, उसको असिस्टेंस क्या मिला हुआ है, गाइडेंस क्या मिल रही है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक इट गोज़ फॉर ऑल. आई थिंक इट गोज़ फॉर स्कूल, it goes for colleges, it goes for any competitive exam, and it goes for both the sectors, the online as well as the offline world as well. These tools were not so existence before the COVID, I think, right? COVID के बाद ही जब हमें लगा कि घर बैठकर ही पूरा पढ़ाना है, right? Then that kind of an innovation happened, right? कि यार बच्चे को सिर्फ एक वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं, उसको हमें सपोर्ट भी करना है पूरी जर्नी में, राइट, कि उसको कहाँ डाउट आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेट्रा. सो फॉर द ऑनलाइन पीस, फर्स्ट आई विल स्पीक फिजिक्स वाला पे. बच्चा आकर सिर्फ एक वीडियो के लिए नहीं आता है, हमारा क्लासरूम 100% लाइव होता है. देयर इज नो कैटेगरी, बैच, क्लास इन फिजिक्स वाला विच इज नॉट लाइव. इट इज़ 100% लाइव. लाइव के दौरान बच्चे के पास लाइव चैट का ऑप्शन रहता है. बच्चा कभी भी जाकर क्वेश्चन पूछेगा, उसको टीचर देखेगा, बता देगा. टीचर अगर पढ़ा रहा है बाद में बता देगा. पीछे से बैकएंड से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उनके पास क्या पहुंचेगा. उनके पास भी ऑप्शन होते हैं कि आपको इसका आंसर देना है तो दीजिए, राइट. तो इस वे में उसको मेंटरशिप सॉर्ट ऑफ ये असिस्टेंस मिलता है. सेकेंड इज कि डाउट सॉल्विंग पोर्टल, राइट. फिजिक्स वाला में ऑनलाइन कोर्सेज में वी गिव अ डाउट सॉल्विंग पोर्टल एज वेल, कि क्लास के बाद अगर किसी भी लेक्चर स्लाइड में बच्चे को डाउट है या कोई भी जनरल एकेडमिक डाउट है या एकेडमिक या स्ट्रेटजी के अराउंड डाउट है, बच्चा जाएगा, डाउट पे पूछेगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या कोई भी प्राइमरी टीचर उसको बता देगा. थर्ड वंडरफुल टूल दैट वी हैव बिल्ड, इट्स बाय द नेम ऑफ सारथी. सारथी में क्या है, बच्चे के पास हमेशा एक ऑप्शन है कि वीडियो के थ्रू लाइव जाकर एक टीचर के साथ 1-on-1 डाउट पूछ सकता है वो, राइट. तो बैकएंड पर टीचर्स हैं, बच्चा कभी भी सारथी पोर्टल पे जाएगा, वीडियो के थ्रू अपना एकेडमिक या कुछ और भी उसको ये क्वेश्चंस पूछना है कि बैकलॉग हो गया है, टेस्ट के बारे में कैसे पढ़ें, कोर्स कैसे कंप्लीट करें, एक्सेट्रा. तो दीज ऑल आर द touch points by which we can definitely give a very good personalized assistance and mentorship for the online world. Now when it comes to the offline world, I think offline world mostly वो देसी वे ही होता है, और मैं भी उस देसी ऑफलाइन कोचिंग का ही ये पंसल में मैं था पहले 2005 to 2007. सो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या रहता है, बच्चा क्लास में ही पूछ लेता है ना, टीचर वहीं पर होता है, है ना, बच्चे का डाउट होता है पर टीचर बता देता है. व्हाट वी हैव डन बियॉन्ड दिस इज, फर्स्ट इज एवरी ऑफलाइन कैंपस में हमारे डाउट रूम्स होते हैं, डाउट काउंटर्स होते हैं, जहाँ पे डेडिकेटेड फैकल्टीज बैठे रहते हैं हमेशा, राइट. सुबह से लेकर शाम तक, जब तक बच्चा चेक इन हमारे यहाँ होता है, जब तक बच्चा लास्ट क्लास के बाद जाता है, तब तक डाउट रूम में फैकल्टी होता है. बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कोई भी बैकलॉग हो गया है, कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, वो जाकर पूछेगा वहाँ पर. सेकेंड इज, आई थिंक बहुत ही वो भी वे है विच इज़ फॉलोड बाय ऑल द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट एडटेक, राइट. स्कूल्स में भी पीटीएम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. पेरेंट्स टीचर कनेक्ट टू शो द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, बट नाउ द प्रोग्रेस इज शोन विद द यूज ऑफ डेटा, कि बच्चे का अटेंडेंस क्या था, बच्चे ने कितना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए, बच्चे के टेस्ट के स्कोर का परफॉर्मेंस क्या था, चार्ट उसका बन कैसा रहा है,
ये सारा पेरेंट्स के पास पहुंचता है। पेरेंट्स के पास एक स्पेशल एप्लीकेशन है, स्टूडेंट पेरेंट्स ऐप, जिस पर सारा डेटा उनके बच्चे का वहाँ पहुँचता है कि अगर कोई बच्चा ये ऑफलाइन में है तो उसका अटेंडेंस, टेस्ट का स्कोर, कितने प्रॉब्लम्स उसने सॉल्व किए एक्सेट्रा। कोई बच्चा ये ऑनलाइन का है तो पेरेंट्स के पास ये भी पहुँचता है कि उसका वॉच टाइम क्या रहा, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो बैठा हुआ तो है फ़ोन के सामने घर पर, बट वॉच टाइम क्या रहा, उसके टेस्ट में कितने मार्क्स है, एक्सेट्रा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो हमने लिया है, बोथ फॉर द ऑनलाइन एज वेल एज द ऑफलाइन वर्ल्ड, एंड इट इज मोस्टली टू लिंक्ड विद द मेंटरशिप एज वेल, इज द प्रेरणा. Prerna is an initiative which we have launched for the emotional well-being of a student. क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें डेफिनेटली एक बच्चे के पास ये स्ट्रेस होता है, राइट, एक फियर होता है, प्रेशर होता है। तो हमारे पास ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में एक डेडिकेटेड डेस्क होती है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठता है, एंड इफ़ अ स्टूडेंट इज़ फेसिंग दैट काइंड ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम, कभी भी जाएगा साइकोलॉजिस्ट के साथ 1-on-1 कन्वर्सेशन में, एंड काफ़ी अच्छा फीडबैक आता है बच्चों का। बच्चे जो वो फियर में जी रहे होते हैं ना, तो वो फियर बाहर आ जाता है, राइट, उनको वो काउंसलिंग बता दी जाती है। अब ये ऑफलाइन में तो पॉसिबल था ही, व्हाट वी हैव डन फॉर द ऑनलाइन वर्ल्ड इसकी डेडिकेटेड प्रेरणा की लाइन है, बैकएंड पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, एंड वी हैव ओपन दिस फॉर ऑल। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स वाला ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई भी बच्चा प्रेरणा हेल्पलाइन पे बात कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग ले सकता है, क्योंकि शायद कभी कभार हम होते हैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं, बट हमारे दिल के अंदर ऐसी बातें होती हैं, वो फियर होता है, वो कि प्रेशर होता है, राइट। तो यहाँ से वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ इमोशनल वेलबींग प्रॉब्लम through this initiative by the name of Prerna. So these are few steps to say mentorship of I personal actually assistance. had a question based on what you just said, Ankit, because you keep referring to the as kids, bache, right? Which is very heartening to see. But one question I had was then, how do you develop a sense of community? You have offline bhi hai, online bhi hai, and you have, what did you say, 28 or 32 different courses among 28, sorry. Among all of this, how do you develop a sense of community through all of this? सेंस ऑफ कम्युनिटी बनाना आई थिंक सभी एडटेक का विजन होना चाहिए। आज के दिन ऐसा कोई भी टेस्ट प्रेप एग्ज़ाम नहीं है जिसका ऑनलाइन कोर्स फ्री में नहीं अवेलेबल होगा, राइट। ये अलग सर का पूरा नीट का, जेई का प्रिपरेशन सोशल मीडिया पर फ्री में अवेलेबल है, right, but what makes a different environment is the live lecture and the live chat, right, क्योंकि वहाँ पर आपको लगता है कि अब हम सब लोग साथ में हैं, right। एक लाइव स्ट्रीमिंग देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जब एक लाइव स्ट्रीमिंग में कोई क्वेश्चन पूछता है, उसी समय एक टीचर उस क्वेश्चन का आंसर बताता है, तो साथ में उस बच्चे को नहीं, सभी बच्चे को ऐसा लगता है कि वो भी उस रूम का पार्ट है, राइट। वरना तो ये एक जस्ट एक वीडियो एजुकेशन वीडियो बन जाएगा, राइट, और एजुकेशन वीडियोस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, राइट, बट उसी पेस पे चलकर एक एक बच्चे का डाउट सॉल्व करना और सेंस ऑफ अ क्लासरूम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइव चैट, लाइव लेक्चर्स इज इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ सेंस ऑफ अ कम्युनिटी। सेकेंड इस की टीचर इंटरेक्शन, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा अपना ही। जब मैं बंसल क्लासेस में पढ़ता था कोटा में 2005 to 2007, तो कभी कभार ऐसा होता था कि लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया, तो क्लास जब ख़त्म होती थी, टीचर जब गेट से बाहर जा रहा होता था तो उसको पकड़ते थे कि सर ये वाला क्वेश्चन बता रही है, सर ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये वाला पेन पॉइंट आ रहा है, एक्सेट्रा, राइट। तो टीचर भी चलते चलते बता देता था, फिर कभी बैठ गया तो उसके साथ ही बैठ गए, चार क्वेश्चन उससे पूछ लिया, 4 बातें उससे कर ली। कभी कभार से वैसे ही नहीं होता था कि सिर्फ अकेडमिक बातें कर ली, कुछ और भी बात कर ली, पर्सनल ज्ञान ले लिया उनसे, उनका एक्सपीरियंस ले लिया, एक्सेट्रा। सो इन अ सेम वे what we have done is कि every batch that we have उसका हमने कम्युनिटी बना दिया है, राइट, जिसमें टीचर का एक है ना ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी है, चैनल है, जहाँ पर टीचर अपना लाइफ एक्सपीरियंस
टीचर बियॉन्ड द एकेडमिक्स जाकर बच्चों से बात करना, एग्जाम्पल्स बताना, बच्चों की पल्स भी पड़ता है, राइट। तो आई थिंक वो कम्युनिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कभी भी ऐसे लगेगा ना बच्चे को वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको तो मैं जानता ही नहीं, बट वो टीचर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर का बच्चों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट टीचर कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द वे वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस इज कि पीयर टू पीयर एक्सपीरियंस। अब जैसे फिर से मैं वही एग्जाम्पल आपको दूंगा, जब मैं पढ़ रहा था कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो हमारे साथ हॉस्टल में जितने बच्चे थे, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा था, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, एक्सेट्रा। तो कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी तो 4 लोग साथ में बैठ जाते थे, जिसका जो अच्छा होता था तो वो साथ में मैं बताता था, राइट, कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, वो कंसेप्ट पूरा बता देता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देता था। तो ऐसे ये ऑनलाइन एंड दी ऑफलाइन इंडस्ट्री में आई थिंक वो कम्युनिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ जो कम्युनिटी बनाई है उसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देगा, राइट। तो वो पूरा कम्युनिटी है ऐप पर, जिसमें उस पर्टिकुलर क्लासरूम के बैच के सारे बच्चे हैं और वो आपस में बात भी करते हैं, राइट। तो उससे वो जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस आता है ना, तो फिर ऐसे ही लगता है कि एक बोरिंग क्लास है, उस क्लास के बाद बियॉन्ड द एकेडमिक्स मेरे दोस्त भी हैं जो एक मुझे ऑफलाइन में मिलते। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स, एंड आई थिंक द नेक्स्ट इज द मेंटरशिप पीस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी बनाने के लिए। शुरू से from the beginning of our conversation, the bulk of our focus has been on students. But my last question to you is about the professionals, the teachers. उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है कि उनका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ अच्छा बन पाए across environments? Yes, I think teachers are the major pillars of any education institute, and so they are for the edtech, they are for the physics wala as well. बहुत ही डायनेमिक बन चुकी है अब ये इंडस्ट्री, राइट। टीचर्स को डेली पल्स देखना बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि जब एक क्लासरूम में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कभी कभार लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं, एंड सारे लोग ही बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, राइट। सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अलग है, कोई टियर 4 उससे भी दूर शहरों से है, गांव से है, कोई मेट्रो से है, सबका बैकग्राउंड अलग है। तो टीचर्स को वो पल्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स को वो इंगेजमेंट लेकर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके यहाँ क्लासरूम में अटेंडेंस तो मेंटेन है कि नहीं है, इंगेजमेंट मेंटेन है कि नहीं है, बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं तो मैंने बताया कि नहीं बताया, मैंने इंगेजमेंट दिया कि नहीं दिया, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ एक टीचर को ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर ऑल बॉर्न ये आउट ऑफ द कोविड एरा, राइट। जब हमारे ये ऑनलाइन क्लासरूम्स इतने बड़े हो गए, राइट, जब ये ऑनलाइन टीचर्स आर वेरी सेलिब्रेटेड टीचर्स एज वेल, राइट, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दे मेक। टीचर्स को टेक्निकल ट्रेनिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैमरा फेस करना है उनको, मीडिया सेंसिटाइजेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दों का सही यूज़, क्योंकि आप एक कैमरा के सामने लाइव जा रहे हो। And in recent इतने times, a lot of cases Yes, have also yes, come yes. up, right? So it's So, important. the way we are solving it is by a intensive faculty training program, जहाँ कोई भी टीचर होता है फिजिक्स वाला में, it goes into a training, right, जहाँ पर उनको पूरा कंटेंट बताया जाता है, डेटा पॉइंट्स बताए जाते हैं, पास्ट का जो हमारे क्लासेस हैं उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बताए जाते हैं, बच्चों का कहाँ प्रॉब्लम आता है उसके बारे में बताते हैं, प्रॉपर मीडिया सेंसिटाइजेशन, सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग होता है, बिकॉज दे आर अ ब्रांड, राइट। ये वो टी शर्ट पहनकर दे रिप्रेजेंट फिजिक्स वाला, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ इज टीचर को खुद से डेली पढ़ना पड़ता है, डेली ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को, बिकॉज it's a dynamic thing, it keeps on changing, you need to keep up with the pace, और आपको हर अंडरस्टैंडिंग के बच्चे को केटर करना है। Ashni, you have any concluding comments on the discussion that we just had? No, I think phenomenal, right? For me, I can relate to it not just as a CX practitioner, but also as a mother of a 12-year-old. These are the things that I would look for if, incidentally, he wants to become a physicist, by the way. Wow. So, no, it's been truly enlightening, Ankit. Wonderful. So that was Mr. Ankit Gupta of Physics Wala sharing its vision for what the future of customer-centric edtech looks like
and how that would entail a seamless education journey. Thank you so much, Ankit, for your Thank time. you, Arjun. And thank you, Rajni, as well, You for are joining. most welcome, Arjun.